بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد حسن، آپ دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام رسول حیدری۔ آج میں ملک اشفاق صاحب کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ ان کی لکھی ہوئی کتاب دی سائنس آف ہیلنگ یعنی 7 چکر کے متعلق گفتگو کروں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا ان 7 چکروں کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اور کیا ان کا اسلام میں بھی کوئی تصور ہے اور یہ انسانی زندگی پر کیا اثر ڈالتے ہیں۔ ہاں جی ملک صاحب فرمائیں۔ جی حیدر صاحب، یہ 7 چکر انتہائی اہم اناٹمی ہے۔ یہ انسان کا جو مادی جسم ہے اس کے اندر ایک روحانی جسم ہے۔ اس روحانی جسم کے اندر 7 جو ہے وہ انرجی کے دریا بہتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں بھی اس کا تصور بڑا مضبوط ہے۔ اس میں ہمارے صوفیہ نے ان کو 7 لطائف کہا ہے، لطائف ستہ کہا ہے۔ تو لطائف ستہ کو انہوں نے کہا کہ یہ 7 جہان ہیں انسان کے اندر، پوری 7 دنیایں ہیں، اس کے اندر پوری کائنات ہے۔ یہ 7 چکر یا 7 جو لطائف ہیں یہ انرجی کے دریا ہیں، اور اس میں رنگ جو 7 رنگ ہے روشنی کے وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہ 7 چکر جو ہے انسان کے جو اندر کی باڈی ہے، جس کو ہم لائٹ باڈی کہتے ہیں، جس کو نور کا جسم کہتے ہیں، یا جس کو ہم روحانی جسم کہتے ہیں، اس کے اندر موجود ہے۔ جب ان چکرز کا انرجی فلو بند ہو جاتا ہے تو انسان کو پریشانیاں، ناکامیاں اور معاشی مسائل، اس کو اپنی زندگی کے حوالے سے بہت سی جو خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب یہ انرجی کا بہاؤ نیچے سے اوپر تک جاتا ہے تو انسان کے روحانی مسائل کے ساتھ ساتھ اس کے جو مادی مسائل ہیں وہ بھی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ابن سینا کی کتاب النفس پوری جو ہے اسی کے حوالے سے ہے۔ پھر مولانا رومی صاحب نے بھی اپنی شاعری میں ان کا ذکر بارہا کیا ہے۔ تو اسلام میں جو 7 چکر ہیں یہ ہمارے سینے کے سامنے 5 ہیں، ایک ناک کے نیچے ہے اور ایک سر کے اوپر ہے، اور جو ناک کے نیچے ہے اسے النفس کہا جاتا ہے۔ جب ہمارے النفس میں کے دریا میں کہنے کے بند ہو جاتا ہے، انرجی کا فلو اوپر نہیں جاتا، تو انسانی زندگی پر اور اس کی نفسیات پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو آج ہم صرف ایک ہی چکر کے بارے میں یا ایک ہی لطف کے بارے میں، ایک ہی لطیفہ کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں، اور وہ ہے لطیفہ نفس، یا جسے ہم روٹ چکر کہتے ہیں، جس کا زمین سے تعلق ہے۔ جیسے 7 دنیایں ہیں، ایسا ہماری پہلی دنیا جس پر ہم موجود ہیں اس کا تعلق اس سے ہے۔ ہم زمین سے جڑے رہیں اور اس سے متعلق جو بھی مسائل ہیں وہ ہمارے حل ہو سکتے ہیں، اور ہمارا انرجی کا فلو کو ہم کھول سکتے ہیں روحانی طریقے سے، اور لیکن اس کا ہمارے مادی جسم پر بھی اثر ہوگا۔ ہماری بہت سی بیماریوں کا تعلق یہیں سے پیدا ہوتا ہے اور یہیں سے ختم ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ناف سے سانس لیتا ہے، جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ناف سے سانس لیتا ہے، جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو پھر اس کا دل جو ہے وہ جو شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ سانس جو ہے دل سے لینا شروع کرتا ہے، اس کی دھڑکن شروع ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک یہ 7 چکر بہت ہی اہم ہیں۔ ان کو سمجھنا ضروری ہے، ان سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ اگر یہ چکر بند ہو جائیں تو ان کو کھولنا کیسے ہے، ان کے بند ہونے کا کیا نشانیاں ہیں، کیا انسانی جسم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہی ان لطائف کی وجہ سے ہے، ورنہ تو دنیا میں اتنی ساری مخلوقات ہے، اور انسان کو بھی اس میں اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ یہی ایک اس کائنات کا ایکٹیو سورس ہے، یہی جو ہے یہاں کا آقا ہے، باقی ساری چیزیں اس کی غلام ہیں، نان ایکٹیو ہیں۔ تو یہ جو 7 چکر ہے اسی کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اسی وجہ سے یہ اپنی کامیابیاں اور اپنے اعلیٰ مقام جو بھی وہ حاصل کرنا چاہے، دولت، شہرت، عزت، وہ انہی سے متعلق ہے، انہی کی وجہ سے ہے۔
तो फिर इनके हम सबसे पहले हम इसके रूट चक्कर के हवाले से या लतीफ़ा नफ्स के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो इसकी डिटेल मैं आपको स्लाइड के हवाले से भी बताऊंगा। हैदरी साहब, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, इंसान कायनात की तमाम तर मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात है। कुदरत ने इंसान को वो आलात और मशीनें दे रखी हैं जो किसी दूसरी मखलूक के पास नहीं। उसके रूहानी और ज़हनी जिस्म में ताकतवर तरीन डिवाइसेस हैं। यही डिवाइसेस और आलात चक्रास या लताइफ़ सत्ता कहलाते हैं। सूफिया का कहना है यही इंसान के अंदर 7 जहान, 7 जिस्म, 7 तवानाई के समंदर और 7 आसमान हैं। इन्हीं की बदौलत इंसान किसी भी तरह के मसाइल का सामना कर सकता है, किसी भी तरह का आला मकाम हासिल कर सकता है, कामयाबियाँ हासिल कर सकता है, खुशियाँ हासिल कर सकता है और सेहत हासिल कर सकता है। इसके अंदर पोशीदा ये 7 जहान इसकी अपनी मलकियत है। यानी इंसान पूरे तौर पर एक कायनात है। जो कुछ भी होता है, ख्वाह अच्छा हो या बुरा हो, ये इंसान के अंदर ही होता है और इसका इंसान खुद ही ज़िम्मेदार होता है। इसके लिए कोई और कतई तौर पर ज़िम्मेदार ना है। जी, जैसे मैं अभी कह रहा था कि इंसान अपने अंदर एक पूरी कायनात है और ये इस पूरी कायनात का खुद मालिक है। अब जो खुद मालिक होगा उस पर कोई दूसरा तो मदाखलत नहीं कर सकेगा। तो इसके साथ, इंसान के साथ जो कुछ अच्छा या बुरा होगा, अगर इसको खुशियाँ मिलेंगी, कामयाबियाँ मिलेंगी, तो ये इसके लिए खुद ही जिम्मेदार है। अगर इसको नाकामियाँ मिलेंगी और इसको बीमारियाँ मिलेंगी, मायूसियाँ मिलेंगी, तो इसके लिए भी ये खुद ही जिम्मेदार है। बाहर से कोई भी जिम्मेदार नहीं है। इंसान के अंदर ये 7 लताइफ या 7 चक्कर्स जो कि एनर्जी का यानी ताकत के तालाब हैं, इनको इंसान की मदद के लिए कुदरत ने रखा है। सूफिया का कहना है कि जब हम अपनी बदअमालियों से, बददयानतियों से, गुस्से से, भुगत से या किसी ऐसी नेगेटिव अमल से करते हैं तो इसका असर हमारे रूहानी सिस्टम पर पड़ता है और इस रूहानी सिस्टम में मौजूद हमारे एनर्जी के, ताकत के ये दरिया जो है ये कसीफ हो जाते हैं, आलूदा हो जाते हैं और इनके आलूदा होने से हमारे अंदर कुदरती जो ताकत है, जो तवानाई है, उसका बहाव जो है वो बंद हो जाता है और इस तवानाई के बहाव के बंद होने से इंसान का जो फिज़िकल बॉडी है उस पर बहुत से असरात मरतब होना शुरू हो जाते हैं। उसमें सुस्ती, काहली के अलावा उसमें रूहानी पेचीदगियाँ और बीमारियाँ ये ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिससे इसके अलावा इन एनर्जी के बहाव का रुक जाने से इंसान के मुआशी और मुआशरती मसाइल भी शदीद हो जाते हैं। अगर हम इन लताइफ को साफ़, शफाफ और पकीज़ा रखना सीख जाएं तो हम हर तरह की कामयाबियाँ और कामरानियाँ जो है उनको समेट सकते हैं और इसके साथ साथ सेहत और खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। पूरी कायनात 4 कुदरती कवानीन के मुताबिक चल रही है। साइंसदानों का कहना है यही कुदरती 4 कवानीन जो हैं इंसान के अंदर भी चल रहे हैं। इनमें तवाज़ुन होना ज़रूरी है। ये कवानीन हैं, नंबर 1 ग्रेविटी फोर्स, नंबर 2 मैग्नेट फोर्स, नंबर 3 वीक अट्रैक्शन फोर्स, नंबर 4 स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स। यानी कायनाती कवानीन खुद इंसान के अंदर भी मौजूद हैं और इंसान की ज़िंदगी को भी ऐसे ही चला रहे हैं जैसे कायनाती कवानीन पूरी कायनात को चला रहे हैं। दूसरी बात,
ये है कि इंसान रूहानी। इसके अलावा ये बात रही कि इंसान जो है, इसके अंदर जो रूहानियत है या इसके अंदर जो रोशनी का बदन है या इसके अंदर जो नूर का बदन है, जिस्म है, क्या उसकी कोई हैसियत है, क्या उसका कुछ सबूत है? हम उसको कैसे साबित कर सकते हैं? हमारी जदीद साइंस ने हर चीज़ यानी हर बाल की खाल कहने तहकीक से उधेड़ कर रख दी। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि कई सौ साल पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक शोबा कायम किया गया जिसमें रूहानियत पर, जादू और जन्नात वगैरह के हवाले से काम किया जाता है। वो शोबा अब भी मौजूद है और वो अपनी तहकीकात हर साल बाकायदगी से शाया करता है। इसके अलावा रूस एक ऐसा मुल्क जो मादा परस्ती के हवाले से बहुत मारूफ है, वहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी मॉस्को में अब भी एक शोबा मौजूद है। यहाँ इंसान की रूह के अक्स उतारे जाते हैं, उसके एक्सरे किए जाते हैं। उन्होंने ऐसी मशीन बना डाली है जिसने रूह के अंदर की तस्वीरें बना ली हैं और इसके अंदर होने वाली कसाफ्तों को, इसके अंदर होने वाली रूहानी सिस्टम को पूरे को उन्होंने वाज़िह तौर पे तलाश कर लिया है और उसको तस्वीरों की शक्ल में आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं और उन पे उनकी तहकीकात भी हर साल छपती हैं और उनमें बड़े बड़े नाम हैं साइंसदानों के। तो कहने का मतलब यह है कि ये हमारे अंदर एक रूहानी सिस्टम मौजूद है। ये हमारा जिस्म जो है ये 7 तहों में है। जो फिज़िकल बॉडी है, इसके अंदर रूहानी बॉडी है और उसके अंदर एक लाइट बॉडी है, उसके अंदर माइंड बॉडी है, उसके अलावा इसका वो एक याहू बॉडी है या हमजाद है। ये सारी चीज़ें जो है ये तसव्वुराती तौर पर नहीं बल्कि सूफिया ने और बहुत से ऐसे रूहानी उलमा ने इनको बाकायदा तौर पे साबित किया है और इसके जो इंसान के फ़िज़िकल बॉडी पर असरात होते हैं उनको भी बयान किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इन लताइफ़ सत्ता या 7 चक्रों के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू सबसे पहले हम बात करेंगे जो रूह चक्र है या लतीफ़ा नफ्स है उस हवाले से। तो इसके लिए